Thank you, thank you, thank you. Very lots of grateful thank you to my all lovely happy universe family. Thank you so much for your precious love, time, and respect. I heartily value out your time. I heartily value out your all blessings that you always shower on us as a pearl of your words. Friends, if you're new on channel, once again I want to make myself introduce with you people. I am Shalini. I am a teacher, always here to make you so much happy and blissful. I love to teach, and teaching is my profession. Teaching is my passion. Other than that, to teach myself and to grow in the spirit, to grow in the word of every arena. It's my great privilege and it's my great passion to learn in all aspects of life. So, from where we can learn? From you, we can learn a lot. And let's know what we have learned. We have learned thank you now. So please be grateful towards your life. Be grateful towards the life reasons you are still having with you to just still move on with that time, because so many persons not having that opportunities to grow out in their life, but still they are just struggling with the life hurdles. Somebody is struggling with the health issues, somebody is struggling with the financial issues. So many persons are having the different strugglings and different sufferings in their life. So are you going to give up? Never give up in your life. Why? We'll tell you everything today. But before that, let's know what we have discussed till now. We have discussed with physical health, mental health, emotional health, social health, spiritual health, body, mind, spirit, and we have discussed till mind part 8. But today I don't have any point, only I have a clarity life points for you. Why? Because I have some important request videos from last 3 months. So today I'm going to cover all these clarity points on the basis of that request videos. So friends, let's start. But please be smiley from your inner higher self and keep happiness growing out in your life all the way. I love you all. You are precious. The special one who is watching right now, be happy for you. Just give a precious smile on your face because the sake of yourself. तो चलिए बातें कर लेते हैं आज कि कौन सी वो चीज़ें हैं जिन्हें जानने के बाद आपकी ज़िंदगी की कुछ चीज़ों के, आपके थॉट्स, आपका कुछ माइंडसेट शायद हिल जाए। क्यों कहूँ मैं कुछ? हु इज़ आई एम? ये सवाल मैं नहीं, आप अपने आप से पूछिए, कौन हूँ मैं कौन हूँ? आप ढूंढिए ना, कौन हो आप? ढूंढा है कभी आपने? चलिए तो आज जर्नी करते हैं स्टार्ट एक, मैं कौन हूँ। इंटरेस्टिंग लग रहा है ना आपको? इस दुनिया में आप जितनी भी महान आत्माओं को देखते हो, कौन थे वो आप ही की तरह एक आम इंसान बनकर इस दुनिया में आए, और जब उन इस दुनिया में आकर अपने होने को जाना तो वो कौन बन गए? जो वो थे, जो वो आए। हम इतनी बड़ी अरबों खरबों की आबादी हैं, लेकिन हम सब क्या हैं? बेहोश। किस जगह से, किस तरीके से बेहोश हैं हम बेहोश इसलिए हैं क्योंकि हमें अपना पता ही नहीं। हमें मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अकॉर्डिंग तो पता हो सकता है कि हमें ये चीज़ चाहिए, उसके बाद क्या, कौन सी वो जर्नी, हर चीज़ की बात करेंगे फ्रेंड्स। हम उस जर्नी पे नहीं हैं जहाँ पे आप अपनी स्पिरिट की जर्नी को पूरा करने के लिए आप संसार से अलग हो जाते हो, आप बैरागी बन जाते हो। आपकी चॉइस है, हम किसी पे टारगेट नहीं कर रहे। वी रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी वंस रिलीजियस, स्पिरिचुअल, physical, emotional, all sentiments towards their spirituality. But I want to give some my point of view regarding my life, regarding everyone's life, because it's very much compulsory to know everyone, because so many myths are there. So many human beings are just spoiling their life on the basis of others' sake. Why? Because they're just trusting on others' journey. हम दूसरों की ही सफ़र को अपना सफ़र मानकर चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, और हमें समझ नहीं है कि हमें जाना कहाँ है। तो चलिए, चलने के लिए हम भी आपके साथ, आपके आगे आगे हैं, और हम सब एक एनर्जी हैं। कैसे, ये भी जानेंगे इसी पार्ट में। नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, मैं कौन हूँ।
तो चलिए जानते हैं कि मैं हूँ कौन। हम इस दुनिया में आए अपने आप को जानने। आपको पता है मैस्लो थ्योरी में भी कहा गया है सेफ्टी नीड्स, जैसे कि मैंने आपको चक्रास के अकॉर्डिंग बताया, इनसिक्योरिटी को ख़त्म करता है, हमारे हायर सेल्फ तक हमें पहुंचाता है, थर्ड है। तो ये जो थ्योरीज़ है कहीं ना कहीं साइंटिफिकली थ्योरेटिकली हम एक ही उस चीज़ पे पहुंच रहे हैं, लेकिन हर इंसान ने अपने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, अपने अपने नज़रिए के बेस पे, अपनी अपनी वाइब्रेशंस के बेस पे, अपनी फीलिंग्स के बेस पे, अपनी अपब्रिंगिंग के बेस पे अलग अलग व्यूज़ दिए, उन्होंने हमें थॉट्स दिए। बट दुनिया ने क्या किया, हम क्या कर रहे हैं आज भी, हम वही चीज़ों को फॉलो करें। करना अच्छी बात है, लेकिन आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ कहाँ रखे, आप सोचिए मेरी इन बातों को, क्योंकि ये डाउट्स मेरे भी हैं, ये मेरे भी हुआ करते थे। अब बातें तो करते हैं कि मरने के बाद हमें नरक मिलेगा या स्वर्ग मिलेगा, है ये बात हम बहुत से लेजेंड्स में पढ़ते हैं, चाहे आप किसी भी बिलीफ सिस्टम से फॉलो करते हैं। लेकिन एक और क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहती हूँ, ना स्वर्ग में, ना नरक में, ना धरती पर, ना सुख का असर हो, ना दुख का असर हो, ना किसी और चीज़ का, वो चीज़ क्या है, उससे भी बढ़कर कोई चीज़ है, ये आपका क्वेश्चन होना चाहिए। जिसका जो एक्सपीरियंस होगा, जितना थिंकिंग लेवल हायर होगा, वो उतने ही हाई लेवल पे जाएगा। फ्रेंड्स, हमें किसी दौड़ में ऐड होने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ अपने आप को समझकर दूसरों को बड़ा क्लियरली समझने की ज़रूरत है। तो क्लैरिटी नंबर पॉइंट 1 आज मैं आपसे ये करने जा रही हूँ कि सच में ही कोई क्रिएटर है। आप विश्वास करते हैं? आप कैसा विश्वास करते हैं? आप वो विश्वास तो नहीं करते जो आप कहते हैं कि शास्त्रों में लिखा गया। मैं पहले ही कह रही हूँ, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ हर बिलीफ सिस्टम की। आप उन बिलीफ सिस्टम्स पे विश्वास करते हैं जो आप कहते हैं सिर्फ लिखा गया है, लिखा गया है। बहुत अच्छी बातें लिखी गई हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी, लेकिन उन लिखी हुई बातों में कभी आप कंफ्यूज हुए? अगर आप कंफ्यूज हुए ना, तो आप राइट ट्रैक पे हो। अगर आप कंफ्यूज हुए, आप पढ़ते हो ना, हम जब पढ़ते हैं तो हमें डाउट्स आए हैं। अगर हमने पढ़ा ही नहीं तो हमें डाउट कहाँ से आएगा? आप कोई भी स्क्रिप्चर ले लो, अगर आप कंफ्यूजन में हो, इट मीन्स यू आर ऑन द राइट ट्रैक ऑफ योर जर्नी। और जहाँ से कंफ्यूजन आपकी लाइफ में स्टार्ट होगी कि यार ये चीज़ ऐसे क्यों है, अच्छा ऐसे क्यों हो गया, ऐसे क्यों नहीं हुआ, तभी समझ जाइए कि आपको खोजने की ज़रूरत पड़ चुकी है अपने क्वेश्चंस को। और जब तक आप उन क्वेश्चंस को कहीं और ढूंढेंगे, वो आपको कभी नहीं मिलेंगे। आई एम वेरी मच श्योर अबाउट दैट। आप सुनी सुनाई विदाउट एक्सपीरियंस बातों को सुन तो लोगे, कुछ टाइम पे आप विश्वास भी कर लोगे, लेकिन अंदर जो मेंटल पीस है ना, जो अंदर है आपका आत्मा, अपना स्पिरिचुअल जर्नी जो आपकी है, उसे आप कंप्लीट नहीं कर सकते उन्हें बिना खोजे। इट्स द फर्स्ट क्लैरिटी पॉइंट। सेकंड, भगवान को वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो कहते हैं कि भगवान पे भी क्वेश्चन उठाते हैं कि वो है। आप मानते हैं कि हाँ वो है, यस मैं भी मानती हूँ कि कोई पावर है, लेकिन सुनी सुनाई बातों के ऊपर क्यों मानते हो आप एक्सपीरियंस कीजिए ना। मैंने कहा था ना आपको, हम उन बातों के ऊपर कब विश्वास करते हैं, जब हम कुछ ऐसा लाइफ में देख लेते हैं, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस कर लेते हैं, तो हम मानते हैं कि वो है। एक्चुअल में कहाँ है वो तो कण कण में है, वो तो दही दूध में है, जैसे माखन होता है, यही हम सुन रहे हैं ना। कहाँ है वो? आप उसे फील कर सकते हो, आप उसे फील कर सकते हो अपने इंटेंशंस में, आप उसे फील कर सकते हो हर एक ह्यूमैनिटी में, आप उसे फील कर सकते हो जहाँ पे सच्चाई है, आप उसे फील कर सकते हो हर सच्ची जीव में, आप उसे फील कर सकते हो हर एक उस जगह पे जहाँ पे न्याय होता है, आप उसे फील कर सकते हो जहाँ पे कोई इंसान गिर कर उठ कर दुनिया के लिए मिसाल बन जाता है। आप उसे फील कर सकते हो जब प्रकृति कुछ लोगों को खड़ा कर देती है, क्योंकि ये जो दुनिया है ये ब्लेम करती है कि भगवान ने ये कर दिया,
भगवान ने वो कर दिया, लेकिन हम अपने कर्मों पे, अपने सोच पे, अपने विचार पे कभी ध्यान ही नहीं देते। हम कहते हैं कि हमने मांगा और हमें मिला नहीं। क्या हम उस शिद्दत से मांगते हैं? क्या हम ये समझते हैं कि वो चीज़ मुझे किस लेवल पे चाहिए? क्या वो चीज़ मुझे स्पिरिट लेवल पे चाहिए, या वो चीज़ मुझे बॉडी लेवल पे चाहिए? वो चीज़ मुझे किस लेवल पे चाहिए? कहीं वो आपका मोह तो नहीं, कहीं तो वो आपका प्रेम है। कुछ भी चीज़, चाहे वो आप कैरियर से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड, किसी भी चीज़ को आप पाना चाहते हैं और आप कहते हैं कि मुझे ये मिली नहीं। अगर आपकी लाइफ में दोनों ही चीज़ों में स्पिरिचुअलिटी है, ट्रुथनेस है, हो ही नहीं सकता कि जो आप सोचते हैं, जो आप मांगते हैं, वो आपको सच्चाई के साथ, अच्छाई के साथ, ट्रुथ के साथ, प्राउड के साथ, रिस्पेक्ट के साथ ना मिले। इट्स इम्पॉसिबल। एवरीथिंग इज पॉसिबल विद ट्रू ग्रेट स्पिरिटफुल हार्ट एंड स्पिरिट। समझ आ गई आपको? अगला क्लैरिटी लाइफ पॉइंट, डोंट कंपेयर एनी बिलीफ सिस्टम विद एनी वन। आपको मैं बता दूं, ये बहुत बड़ा पाप है। हम हर एक महान आत्मा के रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे वो हिंदुज़्म से रिलेटेड है, बुद्धिज़्म से रिलेटेड है, क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड है, इस्लाम से रिलेटेड बहुत से धर्म हैं। 5000 साल पुरानी बातें हमारे ग्रंथों में चल रही हैं, बिब्लिकली 2000 ईयर्स से कही जा रही हैं। वी रिस्पेक्ट एवरीवन, बट वी कांट कंपेयर एनीवन। हर एक चीज़ का अपना अपना महत्व है। कैसे? मेरा अपना एक्सपीरियंस है, आपकी लाइफ अपनी है। मैं कैसे कह दूँ कि मेरा स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है और आपकी लाइफ का स्ट्रगल मेरे लाइफ की स्ट्रगल के आगे कुछ नहीं? या मैं ये कैसे कह दूँ कि मेरी मम्मा बहुत अच्छी है और आपकी मम्मा मेरी मम्मा से अच्छी नहीं? मैं ये कैसे कह दूँ कि जितना नॉलेज मुझे है आपको नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? आई फील हैप्पी, आपके अंदर मुझसे भी ज़्यादा नॉलेज हो सकता है, क्योंकि यू आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ क्रिएटर। सो प्लीज़, अगर बहुत से डिवोटीज़ हैं, कोई डेटीज़ के हैं, कोई गुरुज़ के हैं, तो उनके अपने बिलीव के हिसाब से गुरुज़ ने, डेटीज़ ने, लॉर्ड्स ने, गॉड्स ने अपनी अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग स्ट्रगल्स किए, उन्हें हैंडल्स किया और हमें हम्बलनेस के साथ जीने की कला सिखाई। हमें नहीं कहा गया कि तुम उनके नाम पे लोगों को ये कहो कि तुम तो गलत बिलीव सिस्टम में हो, तुम उस बिलीव सिस्टम में हो। अरे भाई, दुख है हमें होगा, हमें किसी और को सुधारने की ज़रूरत क्यों है? हम अपनी लाइफ से अपने लॉर्ड को, हम अपनी लाइफ से, अपने कैरेक्टर से, अपनी सोच से अपने गॉड को एक्सप्रेस करते हैं ना, तो दुनिया खींची चली आएगी। लेकिन कहीं पे भी हमें ये तो नहीं सिखाया गया कि हम किसी के ऊपर, किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करें, किसी को दुख दें, किसी की निंदा करें, किसी की चुगली करें। हमें वन एंड ऑल यही कहा गया था ना कि हमें प्यार से रहना है। क्योंकि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि मैम मुझे बहुत रिलीजियस कन्फ्यूजन होता है, आप इस बात पे अपना ग्रेट पॉइंट ऑफ व्यू दो। मैं सबसे पहले सॉरी करना चाहती हूँ मेरे लवली व्यूअर को, क्योंकि मैं 3 मंथ्स इस क्वेश्चन के आंसर का वेट कर रही थी, बट मैंने आज इसके लिए सही टाइम निकाला। सॉरी फॉर डिले, और मैं आपका आंसर दे रही हूँ आपको। आंसर ये है, जहाँ पे आप अपने आप को नेचर में सही रखते हो, अपने करैक्टर में सही रखते हो, अपने मुंह से किसी को बुरा नहीं बोलते हो, आप ब्लेसिंग्स देते हो, चाहे वो हिंदुज़्म, चाहे वो क्रिश्चियनिटी, चाहे वो इस्लाम, चाहे वो बुद्धिज़्म, कोई भी रिलीजन हो, हर एक चीज़ की रिस्पेक्ट करके सबके साथ प्रेम से रहना ही सबसे बड़ा प्यार और सबसे बड़ा धर्म है। हमारा रिलीजन सिर्फ़ और सिर्फ एक दूसरे को खुश देखना, एक दूसरे के ऊपर विश्वास करना, एक दूसरे की काबिलियत के ऊपर भगवान की बनाई गई चीज़ों की रिस्पेक्ट करना, और बिना किसी कंपैरिजन के, यही सबसे बड़ा रिलीजन है। और एक और बात, कभी भी नियति के अगेंस्ट जाकर, अगर आप अच्छे लोग हैं, मैंने आपको कल कंपैरिजन बताए थे, 3 टाइप्स के बताए थे, कंपेयर नहीं, 3 तरह के लोग बताए थे कि किस तरह के, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बीच वाले अच्छे होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा बुरे होते हैं। अगर आप
ट्रू स्पिरिट वाले अच्छे हैं ना, तो प्लीज़ कभी भी ना अपने हिसाब से बदला लेने की कोशिश ना करिए किसी से। नेचर के डिसीजंस में, नेचर के जजमेंट में, नेचर के ऑब्जर्वेशन में आप अपनी टांग ना अड़ाएं। आपके साथ नेचर का हर लोग खुद काम करेगा। तो ये है कुछ मेन स्पेशल क्लैरिटी लाइफ पॉइंट, और इनको ध्यान में रखते हुए कल हम बढ़ेंगे नेक्स्ट सीरीज़ में। मैं कौन हूँ? मैं वो हूँ जो आप में है, जो आप हैं वो हम हैं। तो फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं कल एक स्पेशल वीडियो में। तब तक के लिए मिलते हैं। चैनल आपकी खुशी का है, अपने आप को बढ़ाइए, इस चैनल को बढ़ाइए, क्योंकि मैंने कहा आई मीन्स वी। आई लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड एंड टेक केयर।